अनंत कोटि ब्रह्मांडर अधीश्वर परम ज्योतिर्मय अतिमान अधीश्वर परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल रे अनंत कोटि प्रणाम। माँ परमेश्वरी दिव्य जननी चरण कमल रे अनंत कोटि प्रणाम जनाए तथा आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त भाई आपा मान को वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाए आरंभ करबा आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र रे आमे मां को नीरव रे ध्यान करबा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सह। आज मंत्रमयी सावित्री पृष्ठा संख्या रही 474। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम मालकानगिरी एन भास्कर राव भाई को अनुरोध करुचु। भाई आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु आम समस्ते नीरव रे मां को ध्यान करिब। समस्ते साइलेंस। रीडिंग ऑफ सावित्री बुक 7 दी बुक ऑफ योगा पेज नंबर 474 and 475 line 1 to 34 canto 2 the parable of the search for the soul अंतरात्मा पाई अन्वेषण माता as in the vigilance of the sleepless night though the slow heavy footed silent hours repressing in her bosom its loaded of grief she sat starting at the dumb tread of time and the approach of ever near fate. A summons from her begin summit came, a sound, a call that broke the seals of night. Above her brows where will and knowledge meet, a mighty voice invaded mortal space. It seemed to come from inaccessible heights and it was intimate with all the world and knew the meaning of steps of time and saw eternal destiny's changeless scene, filling the far prospects of the cosmic grace. As the voice touched her body became a tract and rigid golden statue of motionless trance, a stone of gold lit by an amethyst soul. Around her body's stillness all grew still. Her heart listened to its slow measured beats. Her mind, renouncing thought, heard and was mute. Why comest thou to his dumb death bound heart? This ignorant life beneath indifferent skies, tied like a sacrifice on the altar of time. O spirit, O immortal energy, if it was to nurse grief in a helpless earth, or with tearless eyes await thy doom, arises, O soul, woe vanquished time and death. But Savitri had replied in the dim light, my strength is taken from me and gave to death. Why should I lift my hands to the shut events who struggle with mute, inventable fate, or hope in the vain to uplift an ignorant race who have their lot and mock of sovereign light and see in mind of wisdom's soul tabernacle. धन्यवाद भाई। एतबेले जाए आम मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सह नीरव रे माँ प्रभु को ध्यान करुले। वर्तमान समय है कि कार्यक्रम रे दिव्य जननी एवं परम प्रभु चरण कमल रे गोटे मातृवंदना निवेदन करने
ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟେ ମାତୃବନ୍ଦନା ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଗଜପତିରୁ ଆଶା ଆପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଶା ଆପା ଆପଣ ଗୋଟେ ମାତୃବନ୍ଦନା ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ମଧୁମୟୀ ମାଗୋ ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ ଭକତିର ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ମାଗୋ ଭକତିର ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ମଧୁମୟୀ ମାଗୋ ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ ଭକତିର ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ମାଗୋ ଭକତିର ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଆମେ ତୁ ଆମ ଜନନୀ ছোট শিশু আমি তু আম জননী ঘিন আম নিবেদন মধুময়ী মাগো তুম পাই আনিছু ভকতির ফুল চন্দন মাগো ভকতির ফুল চন্দন ঝর ঝর হই পাহাড় কোলরু ঝরে ঝরଣା যে সন ঝর ঝর হই পাহাড় কোলরু ঝরে ঝরଣା যে সন ঝরাও গো মাত হৃদয় ভকতি এই আম নিবেদন মহ মহ হই মহকিত করে যেতে কটি কি কুসুম মাগো যেতে কটি কি কুসুম মধুময়ী মাগো তুম পাই আনিছু ভকতির ফুল চন্দন মাগো ভকতির ফুল চন্দন টিকি অন্তরে সুরভি ভরগো করিবু সদা সুকর্ম টিকি অন্তরে সুরভি ভরগো করিবু সদা সুকর্ম জানি নাহু কিছু পূজা অর্চনা কিবা তুমরি জଣାଣ টিকি হাত যোড়ি আসিଅଛୁ ধাই ঘিন আমরি প্রণাম মাগো ঘিন আমরি প্রণাম মধুময়ী মাগো তুম পাই আনিছু ভকতির ফুল চন্দন মাগো ভকতির ফুল চন্দন ছোট শিশু আমি তু আম জননী ছোট শিশু আমি তু আম জননী ঘিন আম নিবেদন মধুময়ী মাগো তুম পাই আনিছু ভকতির ফুল চন্দন
मागो भकतिर फूल चंदन। धन्यवाद आपा, बहुत सुंदर प्रार्थना टी आपण माँ और प्रभु चरण कमल निवेदन कर निज रचना बहुत सुंदर। आज दिन टी गोटे स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध दिवस। आज परम प्रभु श्री अरविंद आम मान को आम समस्त मानव जाति को ऊर्ध्व चेतना को नवापाई आम समस्त को अतिमानव रूपांतरित करने जो अतिमानस ज्योति धरापृष्ठ को अवतरण करेले निज शरीर माध्यम प्रभुंकर आज से ज्योति जो निज देहरे आशीर्वाद द्वारा निज शरीर को भी से प्रदान करने को पड़ेगा। आम मान से शरीर त्याग करने को पड़ेगा फिजिकल बॉडी को। आज प्रभुंकर महापरायण दिवस। आज आम पवित्र से दिवस को आम पालन करुचे। परम प्रभुंकर महापरायण दिवस आज पालन करुचे आम एस्पिरेशन पाठचक्र माध्यम। आज दिन में गोटे बही प्रभु श्री अरविंद धारावाहिक भाव में आलोचित होची जहाँकि आलोचना करमर बरगढ़ बुलू भाई राधाकांत मिश्र जो वॉल्यूम तार वॉल्यूम टी रही CWSA कलेक्शन वर्क ऑफ श्री अरविंद 32 दि मदर विथ लेटेस्ट एंड दि मदर तार टॉपिक रही मांकर ज्योति एवं मांकर सूक्ष्म दर्शन the lights and the visions of the mother। भाई आलोचना गत थर आरंभ कले तार कंटिन्यू डिस्कशन हम भाई को अनुरोध करुच्ची भाई आलोचना जारी रखु। ता पूर्व आज दिन वशिष्ठ परम प्रभु श्री अरविंद अतिमानस ज्योति अवतरण तार विषय आपण दीपद कही कार्यक्रम को आगे नेबे। राधाकांत भाई बुलू भाई आलोचना जारी रखु भाई। नमो भगवते श्री अरविंदा। ओम नमो भगवते श्री अरविंद। ओम नमो भगवते श्री अरविंद। सत्यं ज्ञानं ज्योतिषी अरविंद। ॐ सत्यं ज्ञानं ज्योतिश्री अरविंद। नमामि श्रीमात्र मेरा अरविंदो। माँ श्री अरविंद पाद पद्म बही मोर विनम्र प्रणाम जनाई आज पाठचक्र कार्यक्रम को आम जारी रखा। आम समस्ते अवगत छु किछि दिन धरी प्रत्येक शनिवार आम कलेक्टेड वर्क्स ऑफ श्री अरविंद दि मदर विथ द लेटेस्ट ऑन दि मदर ये ग्रंथटी को आम आलोचना करी आसुचु। किंतु आज जेहेतु आम एक विशेष तात्पर्यपूर्ण दिवस आज जो घटना घटी ताहा आमको आदौ अजणा नुह। डिसेम्बर 5 तारीख 1950 मसीह प्रभु तांकर स्थूल कलेवर त्याग कले एवं ए त्याग को एक महान त्याग बोली माँ कहते। गोटे समय रे प्रभात सन्याल को माँ कहते। डॉक्टर प्रभात सन्याल तांकर नाम समस्ते शुणीचु।
ଯେ people do not know what a tremendous sacrifice Sri Aurobindo has made. प्रकृति ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିପୁଳ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତ୍ୟାଗଟି କ'ଣ ନା ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀର ତ୍ୟାଗର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବେ 1949 ମସିହା ବେଳକୁ କୌଣସି ଏକ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଲା, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ମୋର ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ, ନୋ, ନା ତାହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କାହାକୁ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବରଂ ମୋ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବି ଏବଂ ତମକୁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବାର ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ମା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସେ ବରଂ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ମାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜର ଶରୀରକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଶରୀର ତ୍ୟାଗର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ହେଇପାରେ ଏବଂ ତାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେ ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଆମର ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିପ୍ରବଣ ମନ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ସେ କଥା ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଆସିବା ଦିନଠୁ ବା ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଆସିଲା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ମିଶନ ଯେ ଏକ ଡିଭାଇନ୍ କନସିୟସ୍ ଡିସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଡିଭାଇନ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଦି ଆର୍ଥଲି ଲାଇଫ୍। ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅତିମାନସ ଚେତନା ବୋଲି କହିଲେ, ଅତିମାନସ ଚେତନାର ଅବତରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଏକ ବ୍ରତ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ପଣ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟୟିତ କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ସମାନ ଯୋଜନା ମାଙ୍କର ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ 14 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କର ରଚିତ ହୋଇଛି। ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଠାରେ ମା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଅବତରଣ ପାଇଁ, ଯଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବ। ସୋ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମିଶନ। ଏହା ହେଉଛି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅବତାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଅବତାରଙ୍କର ଅବତରଣର ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେମାନେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ, ଯାହାଫଳରେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ରୂପାନ୍ତର ହେବ ଏବଂ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଯାବତୀୟ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି, ଜରା ବ୍ୟାଧି ମୃତ୍ୟୁ ଆଦି, ଶୋକ ସନ୍ତାପ ଆଦି, ସେ ସବୁର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପାନ୍ତର। ଏମିତି ଏକ ଜୀବନ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଲେଶ ମାତ୍ର ରହିବ ନାହିଁ, ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ପୃଥିବୀରେ ସଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ରତ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେ ସିଦ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ନାଇଁ, ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଦେଖିବେ, ଜୀବନରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାରିବେ ଯେ ସେ ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ
मोड़ परिवर्तनकारी घटना अच्छी से घटना गोटे तथाकथित सफलता तथाकथित सम्मान तथाकथित प्रतिष्ठा को त्याग करी से ताठू उच्चतर एक व्यवस्था को ग्रहण करुछंती। उदाहरण स्वरूप आम देखिपारे नीरद वरण जमी वर्णना करुछंती जे तांकर जीवन व्रत भाव जीवन लक्ष्य भाव साधारण जीवन लक्ष्य भाव बापा कृष्णधन घोष जो लक्ष्य पोषण करते आईसीएस ऑफिसर हेबे से इंग्लैंड को पाठ पढ़ा गले पाठ पढ़िले पाठ पढ़ा क्षेत्र में अभूतपूर्व पारदर्शिता प्रदर्शन कले परिशेष जो से इंग्लैंड को पाठ पढ़ा जाते आईसीएस परीक्षा देले उत्तीर्ण हेले किंतु ताहा तांकर जीवन आभिमुख्य हो नथिबारु ठीक सही समय जो समय से सिद्धि लाभ कले से सफलता हासिल कले वर्तमान में सिद्धि कले से सफलता इप्सित सफलता तांको बापा वांछित सफलता जो समय से पाइछंती ठीक सही समय ताको त्याग करी आसिकरी से भारत रे बरोदा राज्य रे तांकर वृत्तिगत जीवन आरंभ करुछंती। खूब कम समय भितर 1893 1905 आम देखिए 7-10-12 वर्ष भितर से बरोदा राज्य रे राजांकर एक अति निर्भर योग्य पदाधिकारी भाव निजको प्रतिष्ठित करि पारिछंती एवं सम्मान गोटे शीर्ष स्थान से मंडन करि पारिछंती। सही समय से सेठारे अटकी जाई पारथांते जे कोनोसी व्यक्ति पई सेही बळी एक सम्मान सेही बळी एक प्रतिष्ठा एक बड़ कथा थिला किंतु स्वेच्छा से ताको त्याग कले आरंभ कले परवर्ती पर्यायर जीवन स्वाधीनता संग्राम जीवन से प्रतिष्ठित हो सारी से वर्जन करुछंती आसुछंती योग साधनार क्षेत्र को 1910 मसीह 1910 मसीह 1924 मसीहा पर्यंत ताहा थिला साधनार एक समय साधनार एक काल से समय प्रभु तीव्र साधना करिछंती एवं साधनार परिणाम स्वरूप से मध्य अधिमानस जोटा रही ओभर माइंड अधिमानस क्षेत्र में से पहुंची पारिछंती एवं श्रीकृष्ण चेतना को पुणे थे फिजिकल डिसेंड ऑफ कृष्ण इनटू फिजिकल भौतिक क्षेत्र को श्रीकृष्ण चेतनार अवतरण पुणे थे संभव कर पारिछंती एवं आम समस्त जानू यही घटनाटी को आश्रमर व्यवस्था अनुजाई सिद्धि दिवस बोली कहगला और सिद्धि शब्दर अर्थ भी आम समस्त को जना अच्छी जिते जड़े साधना रे अभिलषित सिद्धि प्राप्त करे ताहाको आम सिद्धि बोली कह किंतु यह किभली भाव सिद्धि थिला श्रीअरविंद ताहा जानि पारले एवं सही समय से अटकी न जाए पुणी थे से निजे निर्वाचित करछंती नहीं एठी अटकी गले हेबने सिद्धिर बा साधनार आरंभ एठू आरंभ हेबो एवं संपूर्ण भाव में निसंगतार एक जीवन सेल्फ चूजन निजे बाछि नौछंती से एकांत रहिबे एकांत साधना करिवे 1934 मसीहा पाखापाखि प्रभु कहउछंती जो चेतना दिव्य चेतना जहाँ को अति मानस चेतना बोली कहा जाउची जार अवतरण फल पृथ्वी पृष्ठ में पार्थिव जीवन रूपांतर संभव हो पारिबो से तार लांज स्पर्श को टेल बोली कह टेल को आम लांज अंत गोटे गोटे प्रांत को से स्पर्श कर तापर ऑन हिमसेल्फ से निजे वर्णना करछंती जे मझिरे मझिरे से अति मानस चेतना अवतरण करुला पुणी फेरी जाउथला तांक शरीर स्थायी होई रही पारु नाही मां मध्य दृश्य देखुछंती एवं साधक मान कहउछंती रही अति मानस ज्योतिष रविन्द्र अवतरण करुछि एवं फेरी जाउछि। एही साधना दीर्घ समय पर्यंत चलला एक परंपरा दीर्घ समय पर्यंत चलला एवं आम समस्त जानू जिते विरोधी शक्ति तथाकथित विरोधी शक्ति जानिगला जे यही चेतनार बा शक्तिर अवतरण फल पार्थिव जीवन में दिव्य रूपांतर संभव हो जाए तेणु श्रीअरविंद को निष्क्रिय करदेवाई श्रीअरविंद को एथुरु व्याहत करदेवाई जो अघटनटी घटिला डाहाण गोड़टी भांगीगला नृत्य विश्वविद्यालय अव्यवहित पूर्व तथापि श्रीअरविंद जारी रखिंट साधना दीर्घ 12 वर्ष पर्यंत तापरे 1938-1950 पर्यंत एवं वर्तमान से शरीर को मध्य वर्जन करिवार निष्पत्ति
ନିଜେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନେଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ନାଇଁ, କେତୋଟି ଘଟଣା, ମୁଁ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ, କେତେକ ଘଟଣା କହିବି। ପ୍ରଥମ କଥା, ନିରୋଧ ଗୌଡ଼ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ 1948 ବେଳକୁ। 1948 ବେଳକୁ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟି ସାରିଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ଆମେ, ସେ ତାର ଏନଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ ତା ବଢି ଯାଇଥିଲା, ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତଜ୍ଜନିତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ତାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ଦେଖାଦେଲା। ପ୍ରଭାସ ସନ୍ୟାଲ କହିଲେ ଯେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅସୁବିଧା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାସ ସନ୍ୟାଲ ଦର୍ଶନକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ସେ ତାକୁ କ୍ୟୁର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଡିଜିଜକୁ କ୍ୟୁର କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ପୁଣି ରିକଭର ହେଉଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମେ କେତେକ ଘଟଣାଟିକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଯୌଗିକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ଅନେକ ସାଧକଙ୍କର ଅନେକ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଉଭୟ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଯୌଗିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ନିରାମୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସକାଶେ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଭାବରେ, ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସେ ଏକ ଭିତ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଅବସ୍ଥା, ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି। ସେଇ 50ରେ ସେଟା ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଧିଟି ଥିଲା ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଏନଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ, ତାହା ପୁଣି ଥରେ ରେକଭର କରୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇଭଳି ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ଜାଣି ଜଣେ ସାଧକ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅନୁଗତ, ତାଙ୍କର ନାଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଘୋଷ, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦକୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ, ଭୃଗୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଭୃଗୁ ସଂହିତାକୁ ଆଧାର କରି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭବିଷ୍ୟତର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଘୋଷ। ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଘୋଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜାତକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହରୋସ୍କୋପ, ଜନ୍ମ ଜାତକ ଆମେ ଯେଉଁ ବୋଲି କହୁ, ଜନ୍ମ ଜାତକ ଦେଖିକରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଫ୍ଟର 78 years he will develop a ଘୃଣା towards his body। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜାତକ ମୋତେ ଦେଖେଇଛ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 78 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ, 78 ବର୍ଷ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ଆସିବ। ଏ ଘୃଣା ଶବ୍ଦଟି ଆମେ ଏଇ ମର୍ମରେ ବୁଝିବେ, ଶରୀର ପ୍ରତି ସେ ଉଦାସୀନ ହେବେ, ଶରୀର ପ୍ରତି ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆସକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। and then he may leave his body। এইটা ହେଲା ଅକ୍ଟୋବର 1950ର କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ତା 2 ମାସ ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। then he may leave his body, ମେ ଶ୍ଲୋକ, ତାପରେ ସେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି। ମେ ଶବ୍ଦଟି ସେ କାହିଁକି ଲଗେଇଲେ, ପାରନ୍ତି ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲେ, ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟରେ, ଅର୍ଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ତାହା ଜଣାପଡୁଛି, otherwise death is in his control। ଅନ୍ୟଥା ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଚାହିଁଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ନ ଚାହିଁଲେ ନୁହଁ। death is in his control। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଚ୍ଛାରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏମ୍ପି ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ in between 1923 and 1926, 1923-1926 ଭିତରେ in one of the evening conversation, ସାନ୍ଧ୍ୟକାଳୀନ ଯେଉଁ ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ
I do not remember if this particular one has been published. पुणी एमपी पंडित कहते यही घटनाटी से सांध्य बैठक में प्रकाशित होइछि कि ना मु कहि परिबि नाही. श्री अरविंद वाज आस्क्ड, श्री अरविंद को पचरा जाइथिला कौन हैव यू कंकर्ड डेथ. पचरा जिबार कारण भी कौन ना आम जानिछु जे श्री अरविंद से स्पष्ट भाव कहते पृथ्वी पृष्ठ मृत्यु विहीन एक जीवन संभव हो पार. तेणु एभली एक प्रश्न जिज्ञासा स्वरूप जागी उठिबा निहाती एक स्वाभाविक कथा. एथि भितर अस्वाभाविकता किछि नथिला. एवं प्रभु को पचारुचंती हैव यू कंकर्ड डेथ, आपण कण मृत्यु पर विजय लाभ करिसंती कि. ही रिप्लाइड, प्रभु उत्तर दौचंती कण इवन इफ आई टेक ए कप ऑफ पॉइजन इट कैनॉट किल मी. एपरिकी मु गोटे कप विष भी जदि पीदेवी ताहले ताहा मते मारी पारिबो नाही बा मोर प्राण नहीं जाई पारिबो नाही. तो जो मानक गहन रे अछंती तांका भितर आउ जने कि आश्चर्य चकित हो जाइथिबे हुए त जेमिति कथा केमिति प्रभु कहउछंती. तेणु आउ जने पचारुछंती जे दैट मीन्स दैट यू कैन नॉट डाई. यार अर्थ में एमिति बुझिबु कि जे आपण मरिबे नाही आप मरी पारे ना, विष पीदे भी मरीजे ना. ही आंसर्ड, श्री अरविंद उत्तर दौरान देयर आर ओनली 3 कंडीशंस अंडर व्हिच आई वुड लीव माय बॉडी. तीनोटी परिस्थिति रे मु मोर शरीर को त्याग करिवि. एटा 1923 रु 26 भीतर कथा. को कंडीशन को परिस्थिति. प्रथम कहउछंती 1 सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ माय मिशन. जो कार्य संपादन करिबा पई मो पृथ्वी पृष्ठ को आसीची सेही कार्य को सफलतार सहित समापन कला परे मु मोर शरीर को त्याग करिवि. द्वितीय, इट बीइंग शोन टू मी दैट इट इज नॉट टू बी दिस टाइम. जदि यह मते देखा जीव जे एई शरीर रे एई थर यह संभव नुह होई पारिबो नाही. एभली जदि मते किछि आभास मिल जाउछि ताहले मु मोर शरीर को त्याग करिवि. 3 नंबर कंडीशन होछि एक्सीडेंट. कोनोसी दुर्घटना जदि होछि ताहले मु मोर शरीर को त्याग करिवि. वर्तमान आम देखिए श्री अरविंद शरीर त्यागर पश्चात रे ए 3टी कारण भितर को कारणटी गृहीत हो गला जीवन ने बोध 2 नंबर टी कौन ना श्री अरविंद देखुंती जे तांको शरीर अतिमानस चेतना को अवतरण करने अतिमानस चेतना अवतरण करने प्रस्तुत होती कि शरीर प्रस्तुत हो पारना. शरीर टी त्याग करने को पड़ो से चेतना को अवतरण कले. परिणाम स्वरूप एक महान त्याग पूर्वक से निज शरीर टी से परित्याग कर शरीर टी त्याग कर दौरान. तेणु यह एक स्वेच्छा निर्वाचन. एथिरे कहीं मोहित हेबा शोकाग्रस्त हेबा आदौ आवश्यकता नहीं बोली माँ स्पष्ट भाव में परदिन कही दौरान. माँ कहते श्री अरविंदर देह त्याग को नहीं दुखित होवार अर्थ हो श्री अरविंद को अपमान करवा. तेणु यही घटना आम जानूँ जे श्री अरविंद निजस्व इच्छा से निजर शरीर को त्याग कर. इट कुड हैव बीन अवॉइडेड. यह को एवॉइड कर पारि था. से जो एस्ट्रोलॉजर कहते जे ये जो परिस्थिति देखा देछि से परिस्थिति को एड़ी दिया जाय परबो जदि किछु गोटे निर्दिष्ट यज्ञ करा जाय पारे. सुरेंद्र मोहन घोष जेतेबेले जानिले तत्क्षणात से पंडिचेरी रे प्रथम नलिनी को कहले, नलिनी राम को, नलिनी परे मां को एवं श्रीअरविंद को भी कहले. श्रीअरविंद मना कले किंतु मां परवर्ती समय इंगित देले जे से एस्ट्रोलॉजर को कहा जाओ यज्ञ पई कोन करा जीवो. सुरेंद्र मोहन घोष तांको सहित जोगाजोग कले एवं जहा करा जीवा कथा ताकू संग्रह कला परे तांकोठो से पुणी थे जड़े मेसेंजर हाथ में पंडिचेरी खबर देले किंतु इट वाज टू लेट. 5 डिसेम्बर अतिक्रम हो सारी. तो आम एमती कहवा कि जे विलंब हो गला बोली नो, इट वाज डिसाइडेड. प्रभु निष्पत्ति नहीं सारी. बाकी घटना केवल एक काकतालीय घटना ता हेबार थिला.
एपरिक जिते डाक्तर मान कथा कहुच्छे डाक्तर मान से मना कर असुस्थता को क्योर करने सामर्थ्य थिले भी जेहेतु से शरीर उपयोगी हो पारना अति मानस चेतना को अवतरण करने को हेले से शरीर प्रस्तुत होना तेणु शरीर त्याग करने को पड़ुछ। अन्य पक्ष अति मानस शक्ति को अवतरण करने समय हो सारी तेणु श्री अरविंद शरीर त्याग करिसेंती एवं आज भली गोटे दिन में यही कथा को बारंबार आगामी पीढ़ी रे भी जुग जुग पर्यंत यही घटना को ही विश्लेषण कर आलोचना करा कथा तार पुनरालोचना चली किंतु आलोचना रे कथाटी वर्तमान आउ सीमित रहिबार समय नाही। जो उद्देश्य पाई प्रभु तांकर शरीर को त्याग कले जो महाशक्तिर अवतरण प्रभु समग्र मानव जाति पाई पार्थिव जगत पाई से तांकर महान त्याग को स्वीकार करनेले वरण करनेले वर्तमान आमर उत्तरदायित्व हेउछि जे आमे सेथि पाई योग्य हेबा जेमिति प्रभुंकर जन्म शतवार्षिक रे मां कहती लेट अस बी वर्दी ऑफ श्री अरविंदो। श्री अरविंदंक जन्म शतवार्षिकी पाई आमको योग्य हेबाक पड़िबो। वर्तमान केवल जन्म शतवार्षिकी बोली नुह आमे जो माने श्री अरविंद को जानूछु पढ़ुछु आलोचना करूछु आलोचना रे भाग नउछु खुशी होउछु गोटे प्रकार गोटे आध्यात्मिक बा साइकोलॉजिकल कथा आमे कहबे स्पिरिचुअली बा साइकोलॉजिकली आमे मध्य किछि समय पर्यंत आमोदित होउछु आह्लादित होउछु श्री अरविंद को पढ़िला परे मां को पढ़िला परे सुनिला परे आलोचना रे अंशग्रहण कला परे किंतु एतिक रे यदि आमे हमर जीवन को समाप्त कर देबा जीवन को सीमित कर रखि देबे ताहेले ताहा श्री अरविंद प्रति मां प्रति यथार्थ हेब नाही यथार्थ भाव हेब नाही। आमर योग्यता को तांका प्रति आमर अनुगत्य को निष्ठा को आस्था को प्रदर्शित करिवार एकमात्र उपाय होछि जे आमे ए विषय रे अधिक रु अधिक सचेतन हेबे एवं निज को प्रस्तुत करबा पई संकल्प व्रत होई प्रयास आरंभ कर देबे जेमिति आमे मां श्री अरविंदंकर योग्य होई परिबा। एही प्रसंग रे थरी मां को प्रश्न पचरा जाइथिला वॉल्यूम 16 रे अछि कथा कलेक्टेड वर्क्स ऑफ द मदर वॉल्यूम 16। स्वीट मदर हाउ शुड वन स्पेंड द दर्शन डेज। दर्शन दिन गुड़िक जने केमिति भाबरे अतिबाहित करबा दरकार। दर्शन दिवस कहले आमे जानिछु कैलेंडर हिसाब से जदि आमे जिबा फेब्रुआरी 21 अप्रैल 24 अगस्त 15 नवेम्बर 24 ये हला दर्शन डे। ये चारोटी को दर्शन डे बोली कहै तो यही दिन गुड़िक जड़े केमिति भाव पालन करबा उचित किंतु सही प्रश्न रे स्पेसिफिक से करछंती डिसेंबर 5th एंड 9th एंड वंस बर्थडे तीनोटी स्पेसिफिक ओकेजन कथा कहउछंती 5 डिसेंबर 9 डिसेंबर एवं जड़े व्यक्ति तार निजर जन्मदिन ये तीनोटी दिन को किभली भाव में पालन करबा उचित अर्थात इथिरे चारोटी पर्याय रही प्रश्न रे गोटे दर्शन दिवस गुड़ी को केमिति पालन करा जिवो बा दर्शन दिवस गुड़ी करे जने केमिति तार जीवन टी से दिन टी से अतिबाहित करिवो बितेइवो एवं डिसेंबर 5 रे डिसेंबर 9 रे एवं निजर जन्मदिन रे से व्यक्ति टी केमिति मनोभाव पोषण करबा उचित। मां उत्तर दउछंती दर्शन डेज दर्शन दिवस गुड़ी को इन सर्च ऑफ ए नॉलेज ट्रूअर देन ऑर्डिनरी नॉलेज। साधारण ज्ञान अपेक्षा अधिक एक सत्यतर ज्ञानर अन्वेषण पाई जने दर्शन दिवस गुड़िक बितेवा दरकार। अर्थात फेब्रुआरी 21 मां जन्मदिन मां प्रति तो आम निश्चित भाव में एकाग्र हेबा किंतु तत्संगे संगे जो ज्ञान वर्तमान आमर आम अधिकारी से ज्ञान रु आहु एक अधिक सत्यतर ज्ञान प्रति आमको प्रयास हेबाक पड़िबो जिज्ञासा प्रकाश करबाक पड़िबो। एटा दर्शन दिवस गुड़िकर कथा कहगला। तापरे 5th कथा एवं 9th कथा जो पचारि छथि दि 5th एंड 9th आज 5 आउ 3 दिन परे 9 आसीबो 9 डिसेंबर जो दिन को प्रभुंकर स्थूल कलेवर को महासमाधिस्थ करागला से दिन को आम केमिति पालन करिबे केमिति मनोभाव पोषण करिवे
the fifth and ninth in understanding what death is. मृत्यु प्रकृति कौन से विषय सचेतन हेबा सकाशे आमे सही दिन निज को एकाग्र करिबा. Without being fear of death, without being afraid of death, without being skeptic of death, आमको मृत्युर रहस्य को जानिबार आवश्यकता रही. कारण माँ जो कथा कहते आम समस्ते देखुछु माँ द्वादश रचनावली मास रचनावली द्वादश घंटे कहते जीवन सबु भय ठारू मृत्यु भय होची मनुष्य ପାଇଁ अधिक भीतिप्रद कथा. मृत्यु प्रति मनुष्य अधिक भयभीत अवस्था रही, भीतग्रस्त अवस्था रही. तेणु मृत्यु प्रति भयभीत न होई, मृत्यु प्रति शंका संकुल न होई, मृत्यु प्रति एक आम जो कौ अनुगत भाव प्रदर्शन न कर. अनुगत भाव मुझे कहूँ मनुष्य अद्यावधि बुझी नहीं जे मृत्यु हूँ सत्य, मृत्यु हूँ अनिर्वार्य. तो एमती भाव टी पोषण न कर प्रकृति मृत्यु कौन, मृत्युर आवश्यकता कौन, मृत्यु आमको किभली भाव अग्रगति रे आध्यात्मिक अग्रगति रे केमिति साहाय्य करे, अमरत्व आड़ को केमिति आमको गोटे पाहच आग को नहीं जाए, पोशाक परिवर्तन ठू अधिक किछि नुह. ये जो भाव सब रही मृत्यु को लेकर यही सब भाव को आमको उपलब्धि करने को हेब, तार गभीरतर सत्य को बुझा को हेब. तेणु 5 और 9 ये दुईटी दिन आमको यही आड़ को सूचित करुछि. एटा एक्चुअली आलोचना आवश्यकता थिला, किंतु जेहेतु प्रश्न आ गोटे भाग रही मुझे कही दउछि. एवं थिला बर्थडे. जड़े व्यक्ति निजर जन्मदिन को केमिति पालन करिवो. माँ कहते द बर्थडे इन फाइंडिंग आउट द पर्पस ऑफ लाइफ. एवं जन्मदिन टी को जड़े व्यक्ति केमिति भाव रे अतिबाहित करिवो इन फाइंड आउट द पर्पस ऑफ लाइफ. जीवन रो उद्देश्य को खोजी पाइबा पाई जड़े मनोनिविष्ट हेबो, आत्मनिविष्ट हेबो, एकाग्र हेबो. तो यही भाव माँ आम परामर्श देइछंती. आजिर दिनटी आमे प्रभुंक प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करिवार दिन. आजिर दिनटी आम पई संकल्पर एक दिन. क्यों संकल्प नहीं, प्रभु मते तम प्रति तम योग्य कर. लेट अस मेक अस योर वर्दी. माँ जमी कहले लेट अस बी वर्दी ऑफ श्री अरविंद. आमे कहिबे आमको आपणकर योग्य कर. यही प्रार्थनाटीर तीव्रता जिते गभीरतर हेब, जेते अंतर प्रदेश उत्सारित हेब, आम जीवन माँ श्रीअरविंद को बुझीबारे जानिबारे सेते अधिक मूल्यवान हो पारिबो, प्रसारित हो पारिबो. तेणु आम आयु काल भितरे आहुरी अनेक हुए तो माँ चाहिए डिसेम्बर 5 आसीपारे, डिसेम्बर 9 आसीपारे, 17 नवेम्बर आसीपारे, 20 नवेम्बर आसीपारे, दर्शन दिवस मान आसीपारे, जन्मदिन आसीपारे. तो जो भली भाव में माँ आमको परामर्श देइछंती ठीक से भली भाव में से ही दिन गुड़िक जदि आम निजर समय को अतिबाहित करि पारिबे ताहेले प्रकृति रे ताहा हेबो माँ श्रीअरविंद प्रति कृतज्ञतार अर्घ्य, मूल्यवान उपहार, योग्य एक प्रदर्शनी. लाइफ एंड विजन ऑफ द मदर. एथिरे प्राय लाइट्स प्रसंगटी बा ज्योति संबंध रे जहाँ सब साधक मानकर जिज्ञासा थिला ताको आमे आलोचना कर सारिछु. वर्तमान किछि विजन, किंतु से विजन सहित मध्य ज्योति जोड़ी ही रही. सूक्ष्म दर्शन प्रकृति या बुझा आमको प्रथम स्पष्ट होगा दरकार जे अनेक समय जिते
आम आम साधारण जीवन कथा कहे अनेक समय जिते आम नीरव बसुचु से कौन होची आम अवचेतन गच्छित किसी चिंता ताहा विभिन्न रूप नहीं आमको प्रतीक धर्मी अनेक दृश्य को आम सम्मुख से आनी थोई दौची ताकू आम विजन बोली कहवा कि पुणी स्वप्न अनेक समय शोले अवचेतनार गह्वर उठी आसूची आम चिंता भितर थिबा आमे पासरे देछु स्थूल भाव में आमर मेमोरी रे नहीं क्या थी तथापि ताहा अवचेतन स्तर रे अछि से पुणी थरे उंकी आसी करी सीधा सड़क नहिले भी प्रतीक भाव में आम सम्मुख रे उद्भासित होची ताहा स्वप्न आ गोटी जोटा कहली कल्पना किंतु विजन होची प्रकृति जने व्यक्ति जेतबे तार अंतर्चेतना रे जागृत थाए एवं ताकू किसी प्रतीक किसी दृश्य ताकू प्रतीत हुए ताकू आम सूक्ष्म दर्शन बोली कहबे विजन्स ए कथाटी को मु मोर निज माने निज भाव में उठाऊ ना आम जो प्रश्न गुड़िक देखिए प्रश्न रे साधक मैंने से कथा को उल्लेख करुछंती जे एई जो दृश्य मु देखिली बा एमिति जो घटनाटी मो सामने घटिला मते जे ओई गोटे दृश्य जो प्रतिभात हैला ताहा प्रकृति रे सूक्ष्म दर्शन को जीव ना केवल गोटे मानसिक कल्पना जीव ना स्वप्न बोली कहि परिबा तो श्रीअरविंद साधकर प्रस्तुति अनुसार कारण से जानते साधकर आध्यात्मिक प्रस्तुति केमिति अछि प्रस्तुति ने ताको से व्याख्या करथिले से जहाँ भी हो आमको केबे सूक्ष्म दर्शन होइछि कि नै हमें कहि परिबे नै केबे एभଳି किछि स्वप्न में देखिछु कि नै एहा हमर व्यक्तिगत कथा किंतु एई सब कथा आलोचना कला परे होय तो हमें किछि किछि रहस्य को निज जीवन में यदि घटिछि उन्मोचित करि परिबे बा यदि अधिक मात्रा रे भावप्रवण होई जेबे हमें ताहेले होय तो आज राति हो आउ किसी दिन भर आमको भी सेमती दृश्य आसी पारे किंतु सेतेबेले आमको डिस्टिंग्विश करबा को पड़िबो जे एटा गोटे रोमांटिक वे रे बा गोटे इमोशनल वे रे आसी जाइछि ना प्रकृति विजन मु निजे जानिबि कारण मु जदि साधना करूछि साधना रे जदि मोर एकाग्र अछि ताहेले मु विजन कोउटा स्वप्न कोउटा एवं मानसिक कल्पना कोउटा ताकू मु ठोरी पारिबि से मांकर कृपा रे प्रभुଙ୍କ कृपा रे किंतु तथापि आमे किंचित आभास पाइबे बेसी नहले भी आज आम यही पुस्तकटीर क्रमान्वयता को रक्षा करी दुई तीन सेमती प्रश्न आलोचना करेंगे सो विजन्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द मदर माने मां किसी एक्सपीरियंस नुह मां को लेकर साधक मान जो किसी सूक्ष्म दर्शन एवं अनुभूति हुई से संबंध में किसी प्रश्न प्रभु को पचरा एवं श्रीअरविंद तार उत्तर दौरान क्वेश्चन भी आम महत्वपूर्ण जदियो उत्तरटी अनेक समय संक्षिप्त किंतु उत्तरटी को ग्रहण करने प्रश्नकर्ता प्रश्न आम अधिक आवश्यक बर्तमान प्रश्नटी आम देखिए प्रश्नकर्ता कहते कर्ता हूँ कर्ती हूँ साधक हूँ साधिका हूँ yesterday when the mother came down in the evening to give darshan अर्थात गतकाली जितेबले माँ तलक ओह्लई आसिले दर्शन पाई I saw her face shining with crimson light like the sun in the early morning प्रातः काल रे ताम्रवर्ण सूर्यंक भली लोहित वर्ण सूर्यंक भली मांकर मुखटी क्रिमसन लाइट गाढ़ लाल रंग धारण कर मु देखिली What is the meaning of crimson light? से क्रिमसन लाइट वा गाढ़ लाल रंगर अर्थ कौन प्रभु उत्तर दौरान क्रिमसन लाइट इंडिकेट्स द मैनिफेस्टेशन ऑफ लव इन द मटेरियल एटमॉस्फियर मैनिफेस्टेशन ऑफ लव इन द मटेरियल एटमॉस्फियर भौतिक जड़ वातावरण रे प्रेमर अभिव्यक्ति वार्ता वहन करुची गाढ़ लाल रंग तेणु बाकी बर्थ आम बुझा श्रीअरविंद ये बुझे तेणु माँ मुहर जो गाढ़ लाल रंग से देखुं तार अर्थ है भौतिक वातावरण भितर दिव्य प्रेम को वार्ता बहन कर माँ तो माँ होती प्रेममयी
आनंदमयी सत्यमयी परमे चैतन्यमयी आनंदमयी सत्यमयी परमे जोटा को वर्तमान से होचंती प्रेम वाले द होल इमेज ऑफ लव प्रेम एक समग्र मूर्ति एक पूर्णांग मूर्ति होचंती मां सावित्री महाकाव्य प्रभु भन्नालगी love in her was wider than the universe मान का भीतर जो प्रेम रही था विश्व ठारू मध्य विशाल तेणु मां को मुहरे लाल रंगर आभा देखा किसी अस्वाभाविक कथा नुह ता प्रतीक ता इंगित करुछि दिव्य प्रेम भौतिक मेटेरियल एटमोस्फियर भौतिक वातावरण रे दिव्य प्रेमर अभिव्यक्ति को दिव्य प्रेमर परिप्रकाश को अभिव्यक्त करुछि द्वितीय क्वेश्चन टुडे while meditating in the pranam hall before the mother came down pranam hall जोठार हम प्रणाम करू मां सेठाकू आसी नाहंती एवं साधक माने बसी छंती मेडिटेशन करूछंती ध्यानस्थ होइछंती तो मां प्रार्थना कक्ष को आसीबा पूर्वर मु जेतेबेले मेडिटेशन करूथिली ध्यान करूथिली आई सॉ इन ए विजन एक सूक्ष्म दर्शन रे मु देखिली दैट फ्रॉम ए हाई प्लेस द मदर वाज डिसेंडिंग एक उच्च स्थान रो मां अवतरण करी आसुछंती वेयरिंग ए रोजी कलर साड़ी गोलापी रंगर एक साड़ी पिंदी आसुछंती हैविंग ए डिवाइन लव फ्लावर इन हार हेयर एवं तांका मुंडरे गोटे दिव्य प्रेम फूल रही व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस यार अर्थ कौन गोलापी साड़ी बुझी ही गला डिवाइन फ्लावर ता कोटा बोध मान बहुत प्रश्न किंतु स्पष्ट डालिंब फूल जोटा डालिंब फूल को डिवाइन लव कथा कहा जाउछि डिवाइन लव दिव्य प्रेम तो गोलापी रंगर साड़ी पिंधि दिव्य प्रेम एक फूल तांको केशगुच्छरे अछि एवं से एक उच्चतर स्थान ओह्लाई आसुछंती एई दृश्यर तात्पर्य कौन तीनोटी कथा गोटे हला गोलापी कलर गोटे हला डिवाइन लव फ्लावर आ गोटे हला डिसेंडिंग फ्रॉम ए हाई प्लेस ए प्रश्न रे तीनोटी दिग रही एवं तीनोटी दिग को नेक ईश्वर कहते इट इज ए सिंबल ऑफ द डिसेंट ऑफ डिवाइन लव यह होची दिव्य प्रेमर अवतरणर प्रतीक पुणी से समान कथा दिव्य प्रेमर वाहक होचंती मां दिव्य प्रेमर फल को प्रवाहित करबा पे मां आछंती कोटी जगह मां कहउछंती हम आलोचना को तो करी सारी छु पुणी तो रिपीट कर दोची ताकू कोट रे रखिबा नै माने उद्धृत करबा नै कारण शब्द रे किछि एपट सेपट हे पारे किंतु भावटे समान रहइबो मां कहउछंती से वॉल्यूम 13 रे अछि से मु पृथ्वी पृष्ठ को पूजा पाइबा पे आसी नै आई हैव नॉट कम टू बी वर्शिप्ड आई डू नॉट वांट टू बी वर्शिप्ड मु पूजा पाइबा को चाहे नै आई हैव नॉट कम टू बी वर्शिप्ड मु पूजित हेबा पे पृथ्वी पृष्ठ को आसी नै आई हैव कम टू वर्क मु काम करबा पे आसी वर्तमान से ही वार्ता से कौन करेंगे सेटा नहीं तो अन्य एक वार्ता कहते से कामटी व्हाट इज से कामटी कौन से हाँ से वार्ता अच्छे बोल से कामटी कौन मैं कहते बाय एनलाइटनिंग द मैनकाइंड टू हेसन द रूल ऑफ डिवाइन लव अपॉन अर्थ टू हेसन द रूल ऑफ डिवाइन लव अपॉन अर्थ पृथ्वी पृष्ठ रे दिव्य प्रेमर राजत्वर प्रतिष्ठा को त्वरान्वित करने सकाशे मनुष्यर चेतना को आलोक दीप्त करने सकाशे यही कर्तव्य को संपादन करने मो पृथ्वी पृष्ठ को आसी पूजा पाइबा नुह तेणु दे जो डिवाइन लव फूलटी मुंडे तुम देखिछ तार अर्थ होची मां से उच्चतर भूमि परा जगत आद्या पराशक्ति दिव्य जननी दिव्य प्रेम वार्ता को नहीं
ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଲୋଚନା ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆସନ୍ତା ଥର ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଇ ସମାନ ଟାଇଟଲ ରହିବ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଭିଜନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ମଦର। ମୋ ପୁସ୍ତକର ମୁଁ 88 ପୃଷ୍ଠାରେ 88 ପୃଷ୍ଠାର ଅଧାରେ ସାରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଏଇ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଯେଉଁ ଭିଜନ୍ସ ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଭିଜନ୍ସ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ତାକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମା ସୁବିଧାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଦିନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା, ଅମୃତ କଥାକୁ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା। କିଛି ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ମ୍ୟୁଜିକ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପୁଣି ପ୍ରଣିପାତ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠି ବିରତି ଘୋଷଣା କଲି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଭର।